بسم اللہ الرحمن الرحیم. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, اور خورشید شاہ صاحب کو میں اکثر اوقات تنگ کیا کرتا ہوں, لیکن کئی سال پہلے میں نے بڑی کوشش کی کہ کچھ سازش کر سکوں ان کے خلاف. میں پولیٹیکل سازش کی بات نہیں کر رہا, میں کوئی ایسی سازش کرنا چاہ رہا تھا جس میں شاید کوئی ہلچل مچ جاتی ان کی ذاتی زندگی میں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور انہوں نے ایک لمبی چوڑی یہاں پہ تمہید باندھی اور یہاں پہ رباب والا قصہ سنایا. ایک شخص تھا رباب بجاتا رہا اور اس کا ریزن بھی بتایا کیا ہے, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. I just wanted to start my show on a lighter way, on a lighter side, on a lighter note. ریزن بینگ کہ یہاں پہ پولیٹیکل یہاں پہ اتنی گڑبڑ ہے اور لوگ اتنے تنگ ہیں, چاہے مہنگائی ہو چاہے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو, اس کی وجہ سے. سو تھوڑے سے لائٹر نوٹ میں اس لیے شروع کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال میرا نہیں خیال کہ آج بھی اگر میں کوشش کروں شاہ صاحب کے خلاف کوئی ذاتی زندگی میں کوئی ہلچل ان کی پیدا ہو تو وہ کامیاب ہوگی, کیونکہ شاہ صاحب جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں, اور وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور وقت کہ وہ کیا سمجھداری کرتے ہیں. لیکن اینی ویز ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے اینکر ہیں, کولیگ ہیں محمد مالک صاحب, ان کو بھی انہوں نے کافی مشورے دیے ہیں. پتہ نہیں وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے, لیکن اینی ویز پروگرام کے بعد ایک مرتبہ پھر میں ان سے الگ ایک کلاس لینے کی کوشش کروں گا, اور میں ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلوں گا لیکن کوشش کروں گا. ہیں ٹھیک آپ؟ دیکھیں, جو آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے, میں نے نہیں مانگا, مجھے نہ پھنسوائیں. مجھے آپ نے مانگا کہ میں یہ میرا موڈ ہے, نہیں میرا موڈ نہیں ہے. پھر آپ کو مالک کا ذکر کیا. نہیں آپ موڈ کے کس چکر میں ہیں, میرے چکر مجھے مالک کا ذکر آپ کو کیا تو کیسا بتایا, میرا گھر کیوں خراب کرنا؟ نہیں آپ کو گھر خراب نہیں کرتا, تو اور کیسے کریں گے؟ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مسٹر مالک کے لیے بھی پرابلم آیا تھا, اور وہ مگر تم ایسی رسک نہ لو تو اچھی بات ہے آپ میری بات مان گئے. نہیں میں تو رسک لینے کے چکر میں نہیں ہوں, لیکن آپ نے اسپینر اچھا پھینکا ہے, اور میرے خیال میں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اسلام آباد میں پہلے رہتے ہوتے تھے منسٹرز انکلیو میں, اور آپ ایسی جگہ پہ شفٹ ہو گئے ہیں, اور شفٹ بھی ہوئے ہیں بنی گالا میں آپ, تو میرے خیال میں اس کے اثرات زیادہ ہیں آپ پہ. نہیں اثرات ہوتے تو الحمدللہ, میں تو اپنی زندگی جو بھی ہے خوشی سے گزار رہا ہوں اور موجودگی میں گزار رہا ہوں. بنی گالا والا یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اور کوئی اور مسئلہ ہے. اور کیا ہے؟ آپ ذاتی زندگیوں میں کیوں پڑے؟ نہیں میں ذاتی زندگی میں نہیں پڑھا, میں تو آگے نکلنا چاہتا ہوں, آپ الٹا میرے پہ مجھے کارنر کرنے کی کوشش. نہیں کارنر نہیں, میں ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین شخص ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو کون مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ آپ مشکل میں ڈال سکتے ہو. نہیں کوشش تو آپ ہمیشہ آپ تو, میں کوشش کی تھی, میں نے بتایا میں ناکام ہوا, لیکن وہ اٹ واز آن اے لائٹر سائڈ. کوشش تو میں نے بڑی سیریسلی کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن آپ سمجھدار ہیں, اینی ویز پولیٹیشین بھی آپ بہت سمجھدار ہیں. بڑا ٹف ٹائم گزارا آپ نے شاہ جی, اور پچھلے کچھ سالوں کی بات کر رہا ہوں میں, اور ٹف ٹائم ملا بھی آپ کو. مجھے ایک پولیٹیکل سوال ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے, تھوڑی سی ABC آتی ہے پولیٹکس کی, زیادہ نہیں, آپ کی طرح نہیں جانتا میں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے. الیکشنز ہوتے ہیں وہ تو میں بعد میں پوچھوں گا, لیکن نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنانے جا رہی ہے. اس میں ذرا تھوڑا سا گیج کر کے کیلکولیشن کر کے مجھے سمجھائیے گا, ایسا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اقتدار میں آئے, اور جو کمٹمنٹ لوگوں سے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ ہسٹورک لیڈرشپ ہے, کیونکہ ہمارے پارٹی کے جو لیڈر تھے اس نے ایک پبلک کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ مجھے یہ چیزیں کرنی ہیں. نیچرلی جو بھی اس کے شیڈو میں آئیں گے ان کی بھی یہ خواہش ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو نے نیچرلی جب آئے تھے تو حکومت نیچرلی لینے کے لیے آئے تھے, صرف سیاست کرنے نہیں آئے تھے کہ مجھے در سے کر لیں. اور جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ کمٹمنٹ تب پوری ہوتی ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں. ریاست کا باغیں جو ہوتی ہے, لگام جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر آپ کا سیاست کا اصل چہرہ سامنے نظر آتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خواہش ہوگی
कि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी हो, मगर फैसला आवाम का होता है, वो देखते हैं। और मेरी ये एक बात है, अच्छा सवाल आपने किया है कि जिस दिन पाकिस्तान में आवाम को रियलिटी हकीकतन एहसास हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या असल रीजन होते हैं तो उनको बाहर आना चाहिए, क्या वो जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरी करते हैं नहीं करते हैं। अभी तक हमारे पाकिस्तान में ये बात नहीं आई है, सच्ची बात है। लोग इसकी तरफ नहीं जाते, स्लोगन की तरफ जाते हैं, ख्वाने ख्वाबों की तरफ जाते हैं, पर वो ख्वाने ख्वाब भी पूरे नहीं होते। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल और लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी उसकी सक्सेस स्टोरीज भी है और बड़े ट्रेजेडी हमारी स्टोरीज भी है। हमने जब भी हुकूमत की है लोगों से कमिटमेंट की है और वो कमिटमेंट को हमने पूरा किया, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। कहता है गलतियां भी होती है, बहुत सी गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं है कि गलतियों से पाक तो अल्लाह की जात है, बाकी कोई नहीं है। तो हमने कमिटमेंट पूरी की नहीं की। मैं बड़ा दोस्तों से पूछता हूँ कि यार हमने 2008 से पहले 2007 में जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पब्लिक से कमिटमेंट की थी, जो भी की थी, क्योंकि जब हम हुकूमत में आते हैं तो जलसों में जाते हैं या आने से पहले एक एमओयू साइन करते हैं लोगों के साथ, जो मैनिफेस्टो हमारा होता है कि हम ये चीजें करेंगे। मैं आपसे भी पूछता हूं कि क्या आप मुझे बता सकेंगे, बहुत बड़ी दावा है ये कि पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई और 5 साल रही, क्या अपनी कमिटमेंट पूरी की पब्लिक के साथ या नहीं की, या कहीं रुक गई, 1-2 चीजें रह गई? सारी कमिटमेंट्स नहीं पूरी हो सकती। नहीं, मुझे बता जो हमने पूरी नहीं की है। आज तक आप लोगों का जो स्लोगन चलता है, रोटी कपड़ा मकान, डोंट यू थिंक ये स्लोगन बड़ा ऑब्सलीट हो गया? नहीं, हमने रोटी कपड़ा और मकान दिया और देने की जरूरत थी। रोटी कपड़ा मकान ये नहीं होता है रोटी पकाई और कपड़े दिए और मकान दे दिया, भाई ये हो गया। रोटी कपड़ा मकान का है, आपने मैशत को ऐसा बनाओ, आपने अप्रोचेबल बनाओ। 30-35 साल में ये स्लोगन जो है इसको रीफ्रेज करने की जरूरत नहीं थी, बजाय इसके कि उसी फ्रेज पे आप चलते रहते। नहीं, इट गिव्स द इंप्रेशन कि एज इफ कि 35 साल में ये जो डिजाइन चेंज किया, इसको पूरा नहीं कर सकते, इसका डिजाइन चेंज किया। रोटी कपड़ा मकान तो जब तक ये जमीन है, जब तक ये इंसान यहाँ रहेगा तब तक ये मसला चलेगा, रोटी कपड़ा और मकान का। ये बेसिक ऊपर से लेके अल्लाह से, जो अल्लाह ने कहा है कि मैं रोटी भी दूंगा मकान भी दूंगा, हर चीज मेरे हाथ में है। तो हमने अल्लाह का जो हुक्म है उसके ताबे हमने वो कुछ किया जो माजी में या आने वाले वक्त में जो हुकूमतें आई वो लोग नहीं कर सके। इसलिए आप जैसे जीरक मैंने इसीलिए शख्स के साथ ये बात मैंने की, मैंने इसीलिए कहा कि इसको रीफ्रेज करने की, स्लोगन को रीफ्रेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये उसको क्या कहें मुझे नहीं पता। आप पॉलिटिक्स में आपकी पार्टी है, लेकिन मैं इसमें तो आपको मुझे कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी ना। देंगे कुछ देंगे, तो बड़ी आसान चीज है। अच्छा खैर उस पर डिटेल में बाद में जाएंगे, बट आई पर्सनली थिंक इसको रीफ्रेज करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को इंप्रेशन ये मिलता है, आपके ओपोनेंट्स को स्पेशली, जनाब अभी तक ये चीज शायद पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, 35-40 साल में मैं आपसे मुत्तफिक है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। हम जब भी मैं इस बात के लिए अपनी पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि जो ये पुराने जमाने में भुट्टो साहब हकीकतन ये बात की पब्लिक से, और पब्लिक को वो राइट भी दिया, 1 मैन 1 वोट और डेमोक्रेसी, कि लोग अपना फैसला खुद करें। ठीक, मकसद ये है कि ये आप सही कहते हैं। अब 50 साल हो गए, हम जब भी जलसे में खड़े होते हैं कि वो गरीबों मिस्किनों नंगे पाँव वालों नंगे सर वालों, तुम लोगों के लिए हम ये करेंगे। भाई कब तक नंगा सर, कब तक नंगे? तो यू एग्री विद मी? मैं इससे एग्री करता हूँ। ठीक, ये स्लोगन को खत्म होना चाहिए। ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे आऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बिल्कुल ना ऑनेस्टली इसका जवाब देंगे। एक स्टेज ऐसी आई थी
पिछले कुछ सालों में, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा, एक स्टेज आई थी जिसमें शायद आपको ऑफर की गई थी कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और वो प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो ऑफर थी बड़ी सीरियस थी। वो कहां पे और क्यों फिजल आउट हो गई? आपने कहा मैं सच बोलूं। हाँ बिल्कुल। लोगों को अगर ये सवाल आ जाए तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और शो करते हैं तो मैं बोलता नहीं, मगर बात सही है। बात सही है? नहीं, मगर वो शो करते हैं कि बात सही है। जो मेरी बात आपने की है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। न मुझे ऑफर आई थी, न मुझे किसी ने डिस्कस किया था। You sure? मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बड़ा गुनाह है। आपके जो अलाइज हैं, जिनके बगैर आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शंस के बाद आप हुकूमत नहीं बना सकते, उनके साथ आप राब्ते में हैं और सर जोड़ के बैठे हुए हैं। सब बात ठीक है? आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए, और जो आम लोगों के जहनों में बात है वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मूव कभी कामयाब नहीं हो सकती थी अगर आसिफ जरदारी साहब खुद इसमें हाथ ना डालते। और आसिफ जरदारी साहब, नोइंग द पर्सन, नोइंग आसिफ जरदारी साहब, वो उस वक्त हाथ डालते हैं जब उनको कोई प्लेइंग फील्ड, प्लेइंग ग्राउंड नजर आए तब। तो उन्हें प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग फील्ड नजर आई और उन्होंने हाथ डाला और नो कॉन्फिडेंस मूव को कामयाब बनाया। विच इज द हिस्ट्री। नो कॉन्फिडेंस मूव की हिस्ट्री देख लें, बड़े कामयाब। पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, चले इसके और भी मल्टीपल रीजंस है, लेकिन उसमें मैं नहीं जाता फिलहाल। लेकिन आसिफ जरदारी साहब नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है विद योर अलाइज मुस्लिम लीग नून, आप उनको फ्रंट पे लेके आते हैं। ठीक है जी, फेस पे वो होते हैं जितने इस वक्त हार्श फैसले हैं वो कर रहे हैं, और आप जनाब वहां पे पीछे बैठ के अगले इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। वो कैसे तैयारियां कर रहे हैं? वो ऐसी तैयारियां करेंगे कि जनाब आपके जो अलाइज हैं, जिनके बगैर आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शंस के बाद आप हुकूमत नहीं बना सकते, उनके साथ आप राब्ते में हैं और सर जोड़ के बैठे हुए हैं। सब बात ठीक है? मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसी मूव नहीं है। हम सिंसियरली अपने अलाइज के साथ चल रहे हैं, सिंसियरली, कोई हमें इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो एक गैप आया है उसमें नवाज शरीफ पार्टी को हमने ये हाथ में दिया है, हम बराबर के शरीक हैं, उसके बेहतरी में भी, उसके खराबियों में भी। ये हुकूमत हकीकतन ये थी, मैं आपको बताऊं, हम मजबूर हुए। किसके हाथों? मैं सुन ले, मजबूर हुए आवाम के हाथों, आपके हाथों। मेरे? हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन तो लेना। नो कॉन्फिडेंस ना लेके आते तो 1.5 साल के बाद तो पीटीआई को पूछना किसी ने नहीं था। सुन तो लेना मेरी बात। आपने तो नई जिंदगी दे दी पीटीआई। सुन तो लेना। आपने हमें मजबूर किया। जहां से जा रहे हैं, शादी कब ये जुल्म खत्म कराओगे? आप लोग कुछ नहीं करते, ये पॉलिटिकल पार्टियां खत्म है, ये ड्रामे खत्म है, अब कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते इमरान खान को। जो इमरान खान ने लेजिस्लेशन शुरू की, जिस तरीके से वो 30-30, 35-35 एक ही मिनट में लेजिस्लेशन कर रहे थे, ये भी, और जिस तरीके से प्लानिंग चल रही थी कि फलाना को प्लान करके हमें लाना है फ्रंट पोस्ट पे, फलाने को इलेक्शन कमिश्नर को गलती करके बैठ गए कि उसको खुद ले आए, अब उसको हटाना है। अगला इलेक्शन आपका पाकिस्तान टेलीविजन पे होता है, अनाउंसमेंट होती, मुबशर साहब जो है वो 1,50,000 वोट लेके जीत गए, खुर्शीद शाह जो है वो 10,000 वोट ले सके। अब अनाउंसमेंट हो गया, नोटिफिकेशन हुई, अब कोर्टों में जाओ, और कोर्टों में 5 साल हो गए लोग, ये इस किस्म का इलेक्शन होता। अच्छा। और जिस तरीके से मुल्क में महंगाई तेजी के साथ आगे आ रही थी, और जिस तरीके से दुनिया का कॉन्फिडेंस आप शटर कर चुके थे, दुनिया ने आपको हर जगह पर रिफ्यूज कर दिया, जिस तरीके के साथ
एक्टिविटी चली इंटरनेशनल कि भाई ये पार्टी कभी आप तुर्की को मलेशिया को कहे कि ये कॉन्फ्रेंस करने में आऊंगा, एक टेलीफोन के ऊपर बैठ जाना। कभी आप किसी के साथ सेटिंग करके जाए वो उसके बाद अमेरिका में जाकर दूसरी बात करें। तो कहना ये है मेरा, मैं इल्जाम तराशा नहीं लगा था, हम मजबूर हुए। 3 मरतबा मुबशर भाई आप माशाल्लाह माशाल्लाह समझदार शख्सियात में से हैं, मुझे बताएं कभी अपोजिशन दुनिया का कोई मिसाल मुझे बताएं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कहते कि आप गलत हैं। दुनिया का कहीं किसी अपोजिशन का मिसाल बताएं जिसने हुकूमत को कहा हो कि हम आपके साथ बैठने के तैयार हैं, आप बैठो, इकोनॉमी पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, बैठ जाए और वो कहे एनआरओ। वो हुकूमत हमेशा ये होती है कि रिक्वेस्ट करती है अपोजिशन को, आओ हमारे साथ बैठो। सर यू डन, मैं बात करूं? चलो अब बात करें। सर गुजारिश ये है कि आप लोगों ने, ठीक है, वहां पे जितने बिल्स आते रहे, जितने ऑर्डिनेंसेस आते रहे, पास होते रहे, बिल्कुल होते रहे, ठीक है, तो आपके आने से क्या महंगाई कम होगी? नंबर 1, एक मैं थोड़ी सी, महंगाई तो नहीं कम हुई आपके आने से, आपके आने से तो महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ गई, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ऑपोजिशन का एक इंप्रेशन दिया हुआ है लोअर हाउस में, नेशनल असेंबली में, वो ऑपोजिशन है? आपके ख्याल में वो ऑपोजिशन है? उसको ऑपोजिशन कह सकते हैं आप? 2। नंबर 3, जो अगर आपको प्रेशर मिलता था या आपको यहाँ से मीडिया की तरफ से प्रेशर था कि आप लोग रह गए, खत्म हो गए, या आप मीडिया से नहीं सिर्फ चले लोगों से भी, लेकिन आपने कहा जनाब कि हम पे बहुत प्रेशर था और हम इसलिए आ गए, नहीं, मैं सिर्फ ये एक मिसाल दी आपको कि लोगों का भी और पॉलिटिकल भी। ओके, गॉट योर पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप लोग अगर निकाल दिया आपने इमरान को, अच्छा किया, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकाला, मैं उस पर आर्गू नहीं कर रहा, वो बिल्कुल आपका राइट था, आपने सही किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, उससे को फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि आप अपॉइंटमेंट जो है अगर करनी हो किसी की तो वो आप अपनी मर्जी से कर सके। उससे फर्क ये पड़ा कि आपने जो काम आपको चाहिए, जो आपने प्रेशर दिया था, यानी कि आपसे मुराद पीपल्स पार्टी ने प्रेशराइज किया था नून लीग के दौर में, और नून लीग के दौर में आपने कहा था जनाब कि जो जहाँ पे अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, नैब के कवानीन में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन नून लीग ने आपका साथ नहीं दिया था उस वक्त, याद है ना सर आपको? ठीक है। और आपने उस वक्त भी कवानीन में, नैब की कवानीन में तरमीम करनी चाहिए, लेकिन जब वो सर पे आके बिल्कुल when it came right on your face all these कवानीन्स, और आपने कहा कि आइंदा जो इलेक्शंस हैं वो तो उसमें तो कोई सर पैर ही नहीं होगा फिर आप लोगों का, और जिस तरीके से इमरान खान आ रहा था, कर रहा था काम, वो तो सबको, उसने किसी को छोड़ना ही नहीं था, वो जो भी NRO 1, 2, 3 जो मर्जी नाम दे दे उसको, तो आप लोगों को एक थ्रेट नजर आई कि आपने आइंदा जो है इलेक्शन वो नहीं जीत सकेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि राणा मुबशर 1.5 लाख वोट ले गया, आपने 10,000 वोट लिए, ये थ्रेट थी कि इलेक्शंस के बाद जनाब आपको बिल्कुल वाइप आउट कर देगा वो। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन चीज क्या होती है। उसके दिमाग में सियासत नहीं थी, फितना था। सियासत और फितने में बड़ा फर्क होता है। हम सियासी तौर पे आगे बढ़े, और पाकिस्तान में पहली मर्तबा जब ये मसले आए, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई, और पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में काफी मर्तबा PDM में ऐसी बातें भी हुई कि नहीं इसको निकालना है, ये करना है, ये इधर नहीं करने है, नहीं उठना है। पीपुल्स पार्टी ने वादे तरीका किया कि हम गैर आईनी तरीका अडॉप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमने आईनी तरीका अडॉप्ट किया और इसको हटाया। हटाया हमने 3.5 साल में। नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था आपका, वो सही चलाचम करके हटाया। और फिर जो आप कहते हैं कि आपने 3 महीने में क्या किया है, देखें ये बात आप समझदार है, लोगों तक भी बात को हकायत जरूर पेश करें कि 3 महीने के अंदर आप क्या जादू का चिराग लेके आएंगे इस बड़े तूफान में जो तबाही हुई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम मजबूर हुए हैं, हुकूमत आने की खुशी नहीं है हमें, इस तरीके से नहीं मिलेगी कि जैसे हम और आप बैठे हैं। वो हुकूमतों में जो आते हैं वो और ही तरीके होते हैं, मगर हम खुश नहीं है, हमें वही तकलीफ हो रही है जो पहले थी।
कि हम किसी भी तरीके से हम इस महंगाई को रोकें और डॉलर को पीछे ले आए। उसके लिए रात दिन काम चल रहा है कि हम किस तरीके से भी जितना जल्दी हो सके। मैं आपको आपके थ्रू अगर जिंदगी रही तो एक दिन आपको कहना पड़ेगा कि शाह साहब ने बात की थी। जब तक पाकिस्तान वो मुल्क है जो सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में, लीडरशिप को स्ट्रेट होना चाहिए, लीडरशिप को स्ट्रेट होना चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए। जो हमारे एसेट्स हैं हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। आज भी मेरा एक प्रोग्राम था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, मैंने वहां भी ये बातें की कि ये जो आज हुआ है और अब हम चल रहे हैं, अगर कोई ये समझता है कि 3 महीने नहीं, 6 महीने, 9 महीने, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल। आपको 10 साल पाकिस्तान को अगर अपने पांव पे खड़ा करना है तो आपको 10 साल कम से कम चाहिए और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फैसला भी आप करना है तो करो। ये मगर खान भी कहता था कि 10 साल चाहिए उसको। नहीं, उसने कहा खुदा को मानो बशर क्या हो गया। वो भी कहता था अगला टर्म चाहिए। नहीं कब वो तो कह रहा था नहीं, अगला टर्म भी उसी का। नहीं, देखे ना उसी का है। आप भी अब कह रहे हैं कि 10 साल। नहीं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा। हाँ। ये बात बदल कर समझा तो करे। उसने तो कहा था कि हम सारा तैयार करके बैठे हैं, हमें सिर्फ 90 डेज चाहिए। ये कहा था, नहीं कहा था उनके मेंबरों ने। नहीं शाह जी आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 साल बाद अगला 5 साल भी उसको मैं वो कह रहा था कि मुझे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, अपनी हुकूमत के लिए नहीं कह रहा। अच्छा। मैं पीपुल्स पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं इस अलायंस की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि अपने पाँव पे खड़ा रहा और लीडरशिप स्ट्रेट हो तो आप 10 साल के अंदर अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, कर्जा भी उतार सकते हैं और डॉलर को भी 50 और 60 रुपए पे ले आ सकते हैं। मगर अपने जमीन को इस्तेमाल करो, अपने सिस्टम को इस्तेमाल करो। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, मुझे बताया। क्या ये कोई अभी हमारे जमाने में अभी कैबिनेट में एक मसला आया जिसमें कहा गया कि M2 गिरवी, पोर्ट कासिम गिरवी, कैपिटी गिरवी, फलाना गिरवी, फलाना गिरवी, फलाना गिरवी। एक प्रपोजल आया कि ये चीजें देनी चाहिए। हमने कहा फिर हम में उनमें फर्क क्या होगा। कोशिश करो कि हम अपने पाँव पे, अपने पेट पे पत्थर बांध के भी इन चीजों में न जाए, पाकिस्तान को गिरवी न करें। हम इनसे बाहर निकल सकते हैं और बड़ी आराम से निकल सकते हैं। मगर हमने 40-50 साल 74 से लेके आज तक हमने जख्म मारे। हमने अपने एसेट्स को डिजाइन नहीं किया, हम चलते रहे कि भाई चलो। अगर बेनजीर भुट्टो ने कोई 2008 में उनके हुक्म पे तो शहीद हो गई कि हमें बादशाह पे मुकम्मल जोर देना है। आज भी एक बंदे ने मुझे याद दिलाया कि जब मीटिंग हुई थी तो आपने किस तरीके से उस मीटिंग को मैथमेटिकली आपने कन्वीन किया और आगे ले गए। जिस हमारे पास डेम साहब ने मिनिस्टर, क्या मैं कोई मिनिस्ट्री मांगता मुझे नहीं मिलती, मैं जो मिनिस्ट्री मांगता मुझे मिलती ना। मुझे कहा गया कि बताओ कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, फिर उनका मुझे वाटर चाहिए। अच्छी वाटर चाहिए, 2 घंटे यहाँ में बिठाई रखा है, बिजली आपके घर में कोई नहीं थी। अच्छी बात है ना कि डिफिकल्ट फैसले कब करेंगे। मेरे घर में बिजली होती तो आप ही कहते कि आप वापडा के मिनिस्टर हो के आपने जान के तो नहीं बंद कराई थी कि मैं 2 घंटे आप कमाल के इंजीनियर मिनिस्टर है, आपके घर रोशन है, गरीबों का अंधेरा है। मैंने कहता हूँ कि भुट्टो साहब ने या बेनजीर भुट्टो ने अंधेरे में उजाला किया और अपने आप को जला के रोशनी पैदा की। हम वो सीखते हैं कि हमें अपने आप को जलाना है, अपने आप को नुकसान देना है, पॉलिटिकल नुकसान देना है, मगर आवाम को एक दिन अपने पाँव पे खड़े करने के लिए कोशिश जरूर करनी है हमें। अभी मजीद आपको टाइम चाहिए, कम से कम 10 साल मुझे या दूसरे आने वाली हुकूमत को, और इसी फुटप्रिंट पे जो आज हम रख रहे हैं ठीक उनको चलना पड़ेगा। जितनी मर्जी सीटें कोई ले, चाहे पीटीआई 100+ सीटें ले जाए, चाहे नून लीग जो है वो 100 सीटें ले जाए, चाहे पीपल्स पार्टी जो है 50-60 सीटें ले जाए, ठीक है, लेकिन जिसके साथ मिलेगी पीपल्स पार्टी वही हुकूमत बनाएगी। ये बात ठीक है।
پولیٹیکل ایکما ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو بھی جتنی مرضی سیٹیں کوئی لے، چاہے پی ٹی آئی 100+ سیٹیں لے جائے، چاہے نون لیگ جو ہے وہ 100 سیٹیں لے جائے، چاہے پیپلز پارٹی جو ہے 50-60 سیٹیں لے جائے، ٹھیک ہے، لیکن حکومت پیپلز پارٹی ہی بنائے گی، جس کے ساتھ ملے گی پیپلز پارٹی وہی حکومت بنائے گی. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ایک بات تو میری کلیئر سن لیں، ہم ایمبیشس نہیں ہیں حکومت کے، ہم مخالفت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں مگر پازیٹیو رول کریں گے. آپ کو ہماری ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. جب ہم نے 17 سیٹیں لی تھی چاروں طرف پریشر آیا کہ استعفیٰ دو. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ کام نہیں کیا، اور اپنی آج بھی اس کی اسپیچ موجود ہے. 17 آدمیوں سے ہم آ کے بیٹھے تھے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اور ہم نے ایک دن بھی سازش نہیں کی، جبکہ ہمیں سازش سے ہٹایا گیا تھا. 97 میں 17 سیٹیں ہمیں دے کے لے کے آئے، اور بی بی نے وہاں اسپیچ کی کہ میں ریوالونگ چیئر نہیں بنوانا چاہتی پارلیمنٹ کو. میری کمٹمنٹ ہے کہ یہ پارلیمنٹ رہے گی، میں اپوزیشن لیڈر بن کے اس کو چلاؤں. مگر ہمیں ایمبیشس نہیں ہے ابھی بھی، 60 لیں 70 لیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں رہ کے اگر اس ملک کو سیو کرتے ہیں، کیونکہ 3.5 سال اس میں سے 25 مہینے میں جیل میں کاٹا میں نے. میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو کہا آپ نے کمزوری کیا تھی، کیا بات تھی؟ یہی تھی نا کہ میری کوشش تھی کہ سیاستدان ہم آپس میں نہ لڑیں. میں 2014 میں جب ان لوگوں نے دھرنا دیا تو میں واحد آدمی تھا جو ان کے پاس گیا کہ خدا کے واسطے آ جاؤ واپس. شیخ رشید کو کیا کہتے رہے آپ؟ شیخ رشید کی بڑی آپ نے بڑے جناب گلے شکوے کیے شیخ رشید؟ نہیں، کبھی نہیں. ابھی کیے آپ نے؟ کبھی نہیں. ابھی کیے آپ نے؟ وہ کہتا ہے یہ میں نے بھی سنا. نہیں، آپ دونوں نے، آپ نے شیخ رشید کو کوریڈور میں پکڑ کے کیا؟ یہ آج کی سٹوری نہیں ہے، یہ 94-95 کی ہے. نہیں سر جی، ابھی کی. آپ چہرہ میرا دیکھیں، وہ دیکھیں صحیح. میں آج اور کل کے چہرے میں دن رات کا فرق ہے. میں نے وہ دیکھیے گا. آپ کہنا چاہ رہے کہ آپ کوئی بوڑھے ہو گئے اس وقت؟ نیچرلی میرا اپنا وہ کیا کہتے ہیں ویلیو بڑھانے کے لیے کہوں گا کہ میں 71 سال کا ہوں. کیوں ویلیو بڑھے گی اس سے؟ ہاں، جیسے آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کی عزت کرتے ہیں لوگ، احترام کرتے ہیں. یہ آپ نے انسوینگر مانگا. چلے ٹھیک ہے، کہنے کچھ اور چاہ رہے تھے آپ، لیکن انسوینگر مار کے آپ بات کچھ اور نکال دیا. نہیں چھوڑے سر جی، میں نہیں مانتا اس چیز کا. آپ نے بھی رنگ نہیں کیا ہے تو آپ کا بھی تو یہی کوشش ہے. کروں گا. ہاں، تو میں نے بھی نہیں کیا ہے، تو اس لیے نہیں کیا نا کہ اپنا فیس ویلیو بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو عزت کرے، احترام کرے، بابا جی کہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بھی میری کاپی کی ہے، رنگ نہیں لگاتے آپ. نہیں، اللہ معاف کر، میں آپ کی کاپی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے ایک بات، آپ لوگوں کا یہ جو اتحاد ہے یہ قائم رہے گا آئندہ الیکشن میں؟ مبشر میں تھوڑی حقیقت بتاؤں، ریالٹی چیک ہے، بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل ہے. مشکل ہے نا؟ بہت مشکل ہے. مگر ہمیں مشکل، میں نے پہلے کہا ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو، چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، چاہے اکانومی ہو یا سوشل ہو. مشکل فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اگر پاکستان کو بچانا ہے. ڈرنا نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں، ایک منٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ قائم رہنا مشکل ہے، رائٹ؟ نہیں، اتحاد قائم رہنا مشکل ہے. اتحاد میں مل کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ مشکل فیصلے ہمیں کرنے ہیں. دیکھیں میرے لفظوں کو آپ گلوری کی طرح گھمائیں تو نہیں. گلوری تو آپ کو یاد آ رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلے ٹھیک ہے، مشکل ہے، اٹس ٹف، اٹس ویری ٹف. لیکن میرے خیال میں جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے اس میں کافی چیزیں آپ لوگ ایڈجسٹ کر چکے ہوں. حقیقت بتاتا ہوں، نیچرلی جو حکومت ہوتی ہے اس پارٹی کی ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتی ہے، کوشش کرتی ہے، دوسری پارٹیوں سے زیادہ ایکسس ہوتی ہے. اب شہباز شریف صاحب ہیں، میری اتنی ایکسس نہیں ہے کہ میں رات کو جاؤں اور دروازہ کھٹاؤں مل لوں، مگر جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ گیپ نہیں ہے نا. جیسے یوسف رضا ہوتا تھا، ان
उनके दूसरे भी काफी लोग होते थे जो हमारे अलाइड भी थे, बहुत से थे, क्यों लीग थी, वो उनको एक्सेस नहीं होता था, हम रात को 12 बजे भी चले जाते थे। ठीक है। तो नेचुरली वो हुकूमत में वो अपने लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, मगर उसको बर्दाश्त करना पड़ता है कि भाई अभी आपने स्पेशल असिस्टेंट ले लिए, 4 इनिशिएटिव सारा लिया आसिफ जरदारी साहब ने, हुकूमत आपने प्लेट में रख के दे दी जनाब नून लीग को, और अब आप कह रहे हैं बर्दाश्त करना चाहिए और आइंदा भी बर्दाश्त हम करना तो चाहिए। डेमोक्रेटिक है ना, नहीं तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है, नून लीग वाले डेमोक्रेटिक नहीं है। जितने भी कहें, मगर क्योंकि हमारे 56 वोट थे, उनके 84 वोट थे, हम ये कहें कि हम 56 वोट वाले आ जाएंगे, तुम लोगों को हमें इमरान खान से बचाना है, इसलिए आप हमारी मदद करो, फिर हम तो 10 दिन भी नहीं चलते। तो आइंदा तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मैं कह रहा हूँ जैसे जिसको ज्वाइन करेगी पीपल्स पार्टी, जो भी मेजॉरिटी वोट्स लेता है, सीट्स लेता है, उसको जो जिसके साथ भी पीपल्स पार्टी मिलेगी वो हुकूमत बनाएगी। फिर उस वक्त भी डेमोक्रेटिक सोच आ जाएगी। पॉलिटिकल वर्कर कैसे इस्तेमाल करो, ऐसी हुकूमत न बनाए जिससे आवाम को नुकसान हो। वो डिफाइन कौन करेगा कि आवाम को नुकसान होना ही। मैं आपकी खुशामदों में लगा रहूंगा, आपके मसले हल करता रहूंगा, उधर तवज्जो नहीं होगी। आपको वो हुकूमत चाहिए जो अपनी स्ट्रेंथ लाती है। आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान बच जाए तो आप उनकी सपोर्ट करें, कहें कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे चलोगे, जैसे अभी हमने कहा कि आपको इस पे चलना पड़ेगा, डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ेंगे, आपको लेने चाहिए, पार्लियामेंट को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको। अब इससे बड़ी हमारी नाराजगियां भी हो रही है, स्पेशली मेरी, कि पार्लियामेंट में आ पाए। किसके साथ नाराजगी थी? प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आपको आना चाहिए, बजट है, आप बैठे, जिसको इस पार्लियामेंट का, शहबाज शरीफ साहब के साथ। हाँ, मैंने कहा आना चाहिए, उनके वजीरों को कहा है, उन सबको कहा है कि भाई आप कहें, आप लोग आए। अगर किसी के जहन में ये है कि पार्लियामेंट के अलावा हम हुकूमत चलाएंगे तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत नहीं, खत्म कर दो पार्लियामेंट, चलाओ। मगर पार्लियामेंट जिस दिन खत्म हुई है तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान मिला है। ये तो भुट्टो साहब का एहसान है कि हमें आइन दे गया जो उसके सहारे पे हम चल रहे हैं, हमारे अदारे चल रहे हैं। अगर वो नहीं होता तो यहाँ तो अफरा तफरी होती, राइट इज राइट होता। कल को इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के लिए सबका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्योंकि मुझे जो नजर आता है वो ये है कि जो भी इलेक्शन हारेगा, जो भी, वो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा कि ये फलां जो इलेक्शन फलां हल्कों में जो हुए इलेक्शंस वो गड़बड़ है, वहां पे धांधली हुई और मैं इनका रिजल्ट नहीं मानता। कोई ऐसा तरीकाकार है, इन शॉर्ट कोई ऐसा तरीकाकार है जिसमें कोई ऐसा सब मिलके बैठ के कोई ऐसा कोई काम कर दें, कोई फैसला कर दें, कोई कंसेंसस निकाल दें कि कोई ऐसे इलेक्शन हो जिसमें कोई हारे कोई जीते सब मान जाए। आप हंस रहे हैं, आप इसलिए हंस रहा हूँ कि नहीं मानेंगे कि ऐसा होता नहीं है। इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, सवाई पीपल्स पार्टी है जो 97 में उसने करके दिखाया कि माना, आके बैठ गई 17 सीटों के साथ, 17 सीटों के साथ। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री है। और अभी भी हमने माना, हमारी काफी सीटें से उठाई गई, मगर हमने सबको मजबूर किया कि पार्लियामेंट के अंदर आओ। ये तो मानेंगे ना आप? ठीक है, पीपल्स पार्टी का रोल था ना, ठीक है, कि भाई अंदर आके बैठो, अंदर लड़ाई लड़ो, बाहर से इस्तीफा नहीं दो। आई एम राइट? बिल्कुल ठीक है। तो आज भी हम ये कह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री बता रही है, मेरी बातें नहीं, मेरी हिस्ट्री बता रही है कि हम पार्लियामेंट को सुपीरियर समझते हैं। जिसने पार्लियामेंट से हट के फैसले किए वो नहीं रहेगा इसमें। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप रियासत के टुकड़े और चीते चीते कर रहे हैं। पार्लियामेंट रियासत का एक बहुत बड़ा मजबूत सतून होता है। दुनिया ने तरक्की पार्लियामेंट से की है। अगर आपको तरक्की करनी, इलेक्शंस कब हो रही शाह जी? इलेक्शन 13 अगस्त 2023। नहीं, ये आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। आप नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? आपको पता है कब होने इलेक्शंस? तो मैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, चलो ठीक है, देख लेंगे। पक्की बात। सिंधी में कहते हैं नींगर छोटी होती है, जुम्मे बड़े होते हैं। चलिए, अगर आपने अनाउंस की इलेक्शन, अगर आप लोगों ने इलेक्शन अनाउंस किए दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो फिर मैं आपसे गिला करूंगा। आपका गिला बनता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।